हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ +1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ। ਉੱਥੇ ਲੀਨੀਅਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਲਿਸਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ BSc ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਲੀਨੀਅਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕਿਡਰ 'ਚ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਆ +1 ਦੇ ਲੀਨੀਅਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਜੋ BSc ਦੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਇੰਟਰਵਲਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਵਲ ਸਿਰਫ ਵਿਚਲੇ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਮੀ ਕਲੋਜ਼ ਜਾਂ ਸੈਮੀ ਓਪਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਉਹ ਓਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਫਾਨਾਈਟ ਜਦੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ x > a, ਮਤਲਬ ਕਿ a ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਅਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਵੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀ ਰੱਖਣਾ? ਓਪਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ x ਲੈਸ ਦੈਨ a ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈਸ ਦੈਨ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਸ ਦੈਨ ਸੀ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਕੁਐਸਚਨਸ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਵਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਟਾਈਪ ਦੇ 4 ਟਾਈਪਸ ਕੁਛ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਸ ਕਵਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ 'ਚੋਂ ਪੇਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। Next is the find the solution of the following. First question is 3x minus 2 greater than equal to 0 and 5x minus 1 less than 0. ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ 3x minus 2 greater than 0 यानी 2 इधर ला दो, 3x greater than 2 हो गया, यानी तो 3 डिवाइड हो गया x greater than 2/3 तो x इधर आ गया x less than 1/5। तो इंटरवल कितना क्रिएट कर दे, देखो 2/3 मतलब 0 पॉइंट समथिंग, 0.6 समथिंग, 1/5 मतलब 0.2। ठीक है, हुण कह रहा वो ये मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ 0 इतने एक मान लो 0.2 है तो 0.6 है। वो कह रहे कि इदा नंबर दसो जो 0.6 तो की हो ग्रेटर हो, 0.6 तो की हो ग्रेटर हो, यानी इधर ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ 0.2 ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, 0.2 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਾਮਨ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੋ देयर इज़ नो सोल्यूशन। नंबर लाइन ड्रॉ करके देख लेना। सो कॉमन तो रीजन आ जाए ना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बोलना सिंपल गल बोलना, देखो दिस इज़ द नंबर लाइन, दिस इज़ द 1 एंड दिस इज़ द -1। मैं बोला मैंने कोई इदा का नंबर दसो जो -1 तो छोटा हो बट 1 तो वड्डा हो, किहड़ा नंबर दसोगे मैनू? या होर भी सिंपल है, नहीं 2। मैं बोला मैंने नंबर दसो जो 1 तो छोटा हो 2 तो वड्डा हो, दस पाओगे? नहीं दस पाओगे। सो सोल्यूशन की हो जाएगा 5। सो इसका सोल्यूशन की हो गया 5। नैक्सट इज़ द -0.03 लेस दैन इक्वल टू 2x + 3/5 इतने प्लस है, लेस दैन इक्वल टू 0.03। अगेन पहले सारे की करो 5 ना मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, 5 ना मल्टीप्लाई करें, डिनोमीनेटर जो 5 खत्म हो जाएगा। फिर 2x + 3 है, असी +3 खत्म करना, तो सारे पासे -3 सबट्रैक्ट मतलब 3 सबट्रैक्ट कर दो। उस तो बाद 2 बच गया साढ़े को, हद तक भी 2 ना सारी डिवाइड कर दो, फिर x के इंटरवल आ जाएंगे। जो इक्वल टू का साइन है तो उन्होंने क्लोज च रखना, नहीं है तो ओपन च रखना, बस यही फर्क है। नैक्सट जिदा सम है 3 - x लेस दैन इक्वल टू 5x - 2 लेस दैन 7 + x। बहुत ईजी है, ये भी सिंपल है। देखो इतने साढ़े को देखो 3 + x लेस दैन 5x -2 सॉरी इतने है लेस दैन 7 + x। इतने x खत्म करनी है ना, तुम सारे की करो x सबट्रैक्ट कर दो, इतने x खत्म हो, इतने भी इतने 5x - x 4x आ जाना। सो कुछ इस तरह ही स्ट्रक्चर बन जाएगी। हूँ मैं 2 खत्म करना, -2 इंच प्लस कर देवां 2, इधर भी +2 करने पैने, इधर भी 3 + 2 5 7 + 2 9। हूँ इन्ना 4 है, सारी 4 नाल डिवाइड कर दो ताकि 4 खत्म हो जाए। तो x के इंटरवल आ गए 5/4 तो 9/4 के बीच। इतने इक्वल टू का साइन नहीं सी, इसलिए ओपन इंटरवल रखा, इतने मैं की रखा क्लोज। हूँ नैक्सट क्वेश्चन देखो, नैक्सट क्वेश्चन है मेरे को 3x + 5 लेस दैन इक्वल टू 1 - 5x।
ठीक है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਗੇਨ x ਦੀ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ x ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ x ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ 3x प्लस -4x ही -4x इधर लेके जाओगे तो प्लस बन जाएगा यानी कि 7x तो इधर आ जाएगा 5 उधर चल जाएगा 1 - 5 इक्वल टू -4 सो x लैस दैन -4/7 मैं तुहानूं एक गल दसी सी x लैस दैन होवे a या लैस दैन इक्वल टू a हुण लैस दैन मतलब कित्थे तक जाएगा इधर -इनफिनिटी तक जाएगा। हुण लैस दैन इक्वल टू होएगा तो जिहड़ी a आ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ क्लोज ब्रैकेट पै जाएगी जे इक्वल टू ਦਾ साइन ना ਹੁੰਦਾ ओपन पै जानी सी बस यही फर्क ਹੁੰਦਾ है। सो सिंपली है सो x लैस दैन -4/7 यानी 4/7 तो लैस दैन किस तक जाएगा -इनफिनिटी तक। इनफिनिटी का ओपन इंटरवल हमेशा होंगे हुण इत्ते डिपेंड करता जे इक्वल टू का साइन है क्लोज पा दो जे नाल इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन रहने दो। सो इदा असीं इंटरवल फाइंड आउट कर लैंदे हां। इहदे नैक्सट सम साडे कोल 3x + 1 लैस दैन x + 5 खुद आई थिंक कर लोगे तुसीं। थर्ड देखो 1/2x + 5 ग्रेटर दैन 0 सो 1/2x - 5 इज ग्रेटर दैन 0 दैट मीनस 2x - 5 की होएगा ग्रेटर दैन 0 यू नो a इंप्लाइज टू जो 1/a इज ग्रेटर दैन 0 ये वाली चीज़ ग्रेटर दैन 0 आ। सो असीं इहनूं लवांगे कि ये वाली चीज़ की है ग्रेटर दैन 0 तां ही डिवाइड च करके ग्रेटर दैन आंसर 0 आया हो गया। मेरी गल सुनो 1 समथिंग 1 दे अपॉन कुछ आ वो ग्रेटर दैन 0 आंसर कदों आएगा जो नीचे वाली चीज़ पॉजिटिव होएगी ये भी तो पॉजिटिव होनी चाहिए ना जे नैगेटिव होती लेट्स से दिस इज अ नेगेटिव 2x - 5 लैस दैन 0 नैगेटिव कोई 1 समथिंग इज नैगेटिव और लैस दैन 0 आना सी। सो किते ना किते सानू इंडीकेट कर रहा ये चीज़ इंडीकेट कर रही है कि डिटर्मिनेंट च चीज़ दी होगी है ग्रेटर दैन 0 तां ही आंसर पूरा इनू सॉल्व करके ग्रेटर दैन 0 आया। सो आई होप तुसीं समझ गए हो इस चीज़ को। सो इन्हें मैं सॉल्व किया एक्स की है ग्रेटर दैन 5/2 हुण 5/2 तो ग्रेटर दैन कितने तक जाएगा इनफिनिटी तक ठीक है। हुण ये देखो इक्वल टू द साइन नहीं सी तो ओपन इंटरवल रहने दो। सो 5/2 तो कितने आ गया इनफिनिट 1/2x - 1/1 - 2x लैस दैन 0 हुण तुसीं देखो 1 समथिंग करके लैस दैन आंसर 0 कदों आएगा दैट मीनस नैगेटिव होया 1 लेट्स से -2 वो क्या माइनस 0 कुछ आएगा ना। सो समझ इस चीज़ में मतलब लैस दैन 0 मतलब डिनोमिनेटर जो है वो 0 तो छोटा है लैस दैन 0 है नैगेटिव है ताही तो आंसर सॉल्व करके 0 आया लैस दैन 0 आया। सो दैट मीनस 1 - 2x लैस दैन 0 सो अगेन आप सॉल्व किया। सो ये साडे कोल की आ गया -2x उधर जाके माइनस हो गया तो तुहानूं पता है जब मैं माइनस ना मल्टीप्लाई करनी हो तो साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज हो जाता है। मैं प्रीवियस वीडियोज़ सारे मैथड दस चुकी हैं। सो x की आ गया ग्रेटर दैन 1/2 सो 1/2 तो ग्रेटर दैन कितने तक जाएगा इनफिनिटी तक ठीक है। सो 1/2 तो इनफिनिटी ओपन इंटरवल क्यों आ गया बिकॉज इतने इनफिनिटी तो होंदा ही ओपन आ इतने नाल इक्वल टू द साइन नहीं सी। अगेन आई होप तुसीं ये वाला सम कर लोगे ये भी वाला कर लोगे ना। हाँ ये थोड़ा सा देख लो 2/3 + x ग्रेटर दैन 5 हुण ग्रेटर दैन 0 की गल नहीं हो रही ग्रेटर दैन 0 की गल नहीं हो रही 3 + x की आ ग्रेटर दैन 5 दैट मीनस किते ना भी किते ये गल है कि 3 + x 0 के इक्वल टू तो नहीं है ठीक है ना जी 0 के इक्वल टू नहीं है दैट मीनस x नॉट इक्वल टू -3 ये माइनस उधर ला जाओ यही गल कहता पाया जी x -3 के इक्वल टू नहीं है दैट मीनस या तो फिर -3 तो छोटा होएगा या फिर -3 तो बड़ा होएगा दो ही केसेस हो सकते हैं ठीक है। सो ये सानू इंडीकेट करता कि दो केसेस है यानी नीचे वाली चीज़ 0 के तो इक्वल हो नहीं सकती ठीक है ना 0 फिर तो इनफिनिटी चल जाना सीगा। सो इस करके दैट मीनस 3 उधर लगे x नॉट इक्वल टू -3 यानी दो केस है या तो ग्रेटर दैन 0 से या फिर ये लैस दैन 0 से बस सिंपल है। ग्रेटर दैन 0 तो तुसीं इहनूं साइन एज इट इज़ रखोगे ग्रेटर दैन 0 मतलब आंसर ग्रेटर दैन फिर 5 आ गया एज इट इज़ इहनूं सॉल्व करके तुसीं इंटरवल कर लेने इंटरवल का हम तुसीं इहनूं सॉल्व ईजीली कर लोगे। x आ गया मेरे को लैस दैन -13/5 सो -13/5 बट x की सीगा ग्रेटर दैन -3 सो ये की हो गया इंटरवल क्रिएट कर लो ठीक है ना -3 तो वड्डा ते -13/5 तो छोटा दोनों इक्वल टू द साइन है नहीं इसलिए ऊपर इंटरवल आ गए। दूसरा केस उन्हें की लै लिया कि जो साढ़े को 3 + x की सीगा 3 + x लैस दैन 0 यानी x लैस दैन की हो गया -3 ये केस लिया एक ओके। सो जो -3 तो लेना है साइन ऑफ इनक्वालिटी तुसीं चेंज करके इन्हें सॉल्व करना यानी तो ग्रेटर दैन हो कि बन जाना लैस दैन बन जाना बस यही फर्क होना ये क्लियर। सो ये जो साइन उल्ट गया फिर अगेन सॉल्व किया साढ़े को x की आ गया ग्रेटर दैन -13/5 ये तो साढ़े को है ना कि x ग्रेटर दैन -13/5 बट x की सी लैस दैन -3 इस केस के अकॉर्डिंग। सो -3 तो कितना तक जाना 13/5 तक ओपन इंटरवल दोनों है ने। सो ये साढ़े को की आ गए सोल्यूशन आ गए दोनों अलग अलग केसिस दे विच एक डिफरेंट काइंड ऑफ सम सीगा। सो ये देख लेना तुसीं। नैक्सट जिदा है 2x - 3 लैस दैन 5x + 3 लैस दैन 2x + 3
ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ। ਅਗੇਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਐਕਸ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਈਨਸ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਖੁਦ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ। 2x - 5 ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5x + 4, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 11। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਾ ਦੋ ਇੰਟਰਵਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੰਟਰਵਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ, 2x - 5 ਲੈਸ ਦੈਨ 5x + 4, ਯਾਨੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ 5x + 4 ਲੈਸ ਦੈਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ 5 ਤੇ 3 ਨੂੰ तो -3x ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 9। ਅਗੇਨ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ 4 ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, 5x ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੈਗਾ 7। ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ x ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -3, ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ x ਲੈਸ ਦੈਨ 7/5। ਸੋ -3 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, -3 ਤੋਂ x ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 7/5 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਵਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਇਸ ਲਈ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ, ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x अपॉन x - 1, ये वाला सम, x अपॉन x - 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/4। ये गल क्लियर, दैट मीनस कि ये किते ना किते नीचे वाली चीज़ 0 के बराबर नहीं हैगी, यानी x - 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। 1 उधर ले जावा मतलब x नॉट इक्वल टू 1। जे x 1 इक्वल नहीं है दैट मीनस या तो फिर 1 तो छोटा होएगा या 1 तो की होएगा ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਦੋ ਕੇਸ ਆ ਜਾਣੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਦੋ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਕਿ x - 1 ग्रेटर दैन 0 दैट मीनस x ग्रेटर दैन 1, x - 1 ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ दैट मीनस x ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਲੈਸ ਦੈਨ 1। ਸੋ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕੇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਸਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਈਨ ਉਲਟਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਟਰਵਲ ਫਾइंड आउट करी जाने। है कुछ नहीं हैगा, बहुत ईजी हैगा कि देखो जो मैं ग्रेटर दैन वाला केस लेना तो उस केस में की करना, इन्हू एज इट इज वाले साइन रख के इन्हू सॉल्व कर देना। हम क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके तो तुहानू आंदा ना, तो सॉल्व करके साडे को इंटरवल आ गया x ग्रेटर दैन 1 - 1/3, x ग्रेटर दैन -1/3, बट x की सीगा ग्रेटर दैन 1। देखो ना हुण समझो इस चीज़ ने मैं तुहानू करवाया होया, दिस इज़ द नंबर लाइन 0, दिस इज़ द 1, ठीक है। लेट्स से दिस इज़ द 1 एंड इतने साढ़े को है -1.3, -1.3 कितने को आएगा, लेट्स से इतने क्या साढ़े को -1.3, ठीक है। हुण x ग्रेटर दैन 1 तो इतने तक अगे सारा शेडेड, 1/3 तो भी ग्रेटर दैन सारा शेड इदा के शेड कर लेने। कॉमन शेड कितों शुरू हुई, इतों 1 तो इनफिनिटी तक। सो जो कॉमन रीजन शेडेड है वो साडा इंटरवल होंगे, सिंपल। ये दूसरा केस x लेस दैन 1, तेनों जो सॉल्व किया गया x लेस दैन -1/3, यानी कि x इतने 0, दिस इज़ द 1 तो छोटा, ये शेड कर लो। इतने कि मैं -1/3 लिया सी, इन्हें किसी होर कलर शेड करके दे लेने, -1/3 इतने लिया, इतने तो छोटा। सो किहड़ा शेड हो गया -1/3 तो इनफिनिटी तक वो शेड हो गया। सो ओपन हुण ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल तुहानू पता किस अकॉर्डिंग लेने, साइन ते डिपेंड करता, जे तो उहदे कोल इक्वल टू द साइन उहनू क्लोज च कर दो, जे मतलब नहीं है तो फिर ओपन च, इतने नहीं तो फिर ओपन च रहन दिता सी। इंटरवल बहुत ईजी होंगे शेड करने, मतलब जो तुहाडे कोल दो शेडिंग आंदियां ने इक्को साइड नू, तुसीं कॉमन वाली ले लो बस, जिहड़ी कॉमन आ, क्लियर। नैक्सट देखो x + 3 अपॉन x - 2 लेस दैन 5। हुण अगेन यानी कि x - 2 जिहड़ा आ वो नॉट इक्वल टू 0 होएगा, हाँ ही आंसर लेस दैन 5 आया ना, यानी कि x नॉट इक्वल टू 2, दैट मीनस या तो फिर x लेस दैन 2 होएगा या x ग्रेटर दैन 2। ये दो ही केस पता करने, यानी एक बार x - 2 नू तुसीं ग्रेटर दैन 0 ले लेना, साइन एज इट इज़ रखने। जो x - 2 नू आपां लेस दैन 0 लेना, ये साइन जिहड़ा विच लेस दैन दैन ग्रेटर दैन करके सॉल्व कर लेना, सिंपल मैथड हैगा। देखो मैं तुहानू करवाई दिन्नी वाला भी, पहले x - 2 ग्रेटर दैन 0 ले लिया, दैट मीनस x की आ गया ग्रेटर दैन 2, एज इट इज़ साइन रहन दिता, जो साडे को रकम सीगी एज इट इज़ रहन दित्ती, तो उन्होंने सॉल्व किया, साडे को इंटरवल आ गया x ग्रेटर दैन 13/4, बट x ग्रेटर दैन की सीगा 2 भी सीगा, ठीक है। सो x 0 1 2 2 तो वड्डा इनफिनिटी तक चल गया 13/4, लेट से इतने 13/4 उस तो भी वड्डा कॉमन शेड 13/4 तो शुरू होएगा। सो 13/4 तो इनफिनिटी तक साढ़े इंटरवल आ गए। यदि x - 2 लेस दैन 0 तो बस ये साइन है तुसीं ये चेंज कर देना, ये ग्रेटर दैन कन्वर्ट हो जाना, बाकी सारे एज इट इज़ तो आप सॉल्व करते इंटरवल फाइंड आउट करते हैं, वो साढ़े को इंटरवल आ जाने। तो सोल्यूशन हमेशा यूनियन च लिखना, ये भी ध्यान रखियो कि सोल्यूशन की होता है ना, जो साढ़े को दो इंटरवल आ जाते हैं ना, वह पूरा तो सोल्यूशन की हो गया, पहला इंटरवल जो साढ़े को एक केस से आया तो दूसरा इंटरवल जो उस केस तो है वो दोनों ने यूनियन के लिख लेना, ठीक है। ये गल का थोड़ा ध्यान रखियो, पिछले भी देख लो सम जोड़े वो दो फाइंड किए ना इंटरवल, इन्होंने फिर यूनियन पा के लिख देना,
मतलब छोटे तो वड्डे वालों लिख देना, ਜਾਂ माइनस इन्फिनिटी तो प्लस इन्फिनिटी तक। क्लियर, माइनस तो प्लस तक। नैक्सट इधर क्वेश्चन है 7x + 5 अपॉन x - 3 <2। ठीक है, अगेन उनकी होगा x - 3 नीचे वाली चीज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स x नॉट इक्वल टू 3, यानी कि x - 3 में एक बार ग्रेटर दैन 0 लवांगी, दैट मीन्स x ग्रेटर दैन 3। एक बार ये केस फर्स्ट होएगा, यदि x - 3 में लेस दैन 0 लेंगी, दैट मीन्स x लेस दैन 3। सो ये दो केसेस अराइज होंगे। ग्रेटर दैन लिए मैं एज इट इज साइन, जो भी रकम दिता है एज इट इज अ साइन ऑफ इनक्वालिटी लेके चलना, बट लेस दैन द केस में साइन ऑफ इनक्वालिटी की कर देना, चेंज कर देना जी, ग्रेटर दैन लेस दैन बना देना, लेस दैन तो ग्रेटर दैन। ये देखो x - 3 ग्रेटर दैन 0 सीगा ना, तो इस केस मैं किया ये साइन एज इट इज लैके सॉल्व किया, तो एक्स आ गया लेस दैन -11/5। ठीक है, हम तुहानूं सॉल्व तो करना आंदा ना, -11 माइनस समथिंग, लेट्स से दिस इज अ नंबर लाइन 0, इतने माइनस दी रकम आउंदियां ना, सो माइनस तो इधर इस तो छोटा इधर हो जाएगा, बट एक्स की है ग्रेटर दैन 3। हम देखो ये कोई सोल्यूशन नहीं आना, 3 तो वड्डा कोई आया कॉमन शेड आया नहीं, सो ये कोई सोल्यूशन ही है नहीं, नो सच वैल्यू एग्जिस्ट। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, ये कोई सोल्यूशन नहीं आया। जो तुम लैस दैन से सॉल्व किया, तुम्हें पता साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज हो जाना, चेंज हो गया। ये तो चाहे साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज करके साढ़े को हो गया x ग्रेटर दैन -11/5, यानी माइनस इतने 0, मान लो इतने 11/5 माइनस इधर, उस तो वड्डा क्या रहा ग्रेटर दैन इधर जा रहा, तो x लेस दैन 3। ओके, सो x लेस दैन 3 इतने हो गया 3 तो कॉमन शेड आ गई बिच, वो वाले साढ़े को आ गया सोल्यूशन। कॉमन शेड देखनी होंगी बस, दोनों कॉमन किहड़ा हिस्सा आ रहा। तुम इदा करो, जो तुम पेपर च कभी भी अप्लाई करना, तुम अलग अलग कलर मतलब अलग अलग जो स्टाइल च 2 शेड कर लियो, जो मैं तुम एक समय तो दस दिनी हाँ, वैसे तो मोस्टली क्लीयर ही होंगे बहुत सारे जणों को। जो साढ़े को -11/, जैसे इतने 5 है, वो बोल रहे 11/5 तो ग्रेटर मतलब इधर जाना, तुम उन्होंने इदा का शेड कर लेना। ठीक है, इधर शेड कर लेना। दूसरा बोल रहा है फिर है एक्स लेस दैन 3, दिस इज द 3, उस तो लेस दैन इधर लाइन लगा के ना तुम इधर शेड कर लेना, फिर कॉमन शेड आया वो इंटरवल लिख देनी, बस इन्ना काम करो। नैक्सट इदा ये वाला क्वेश्चन है सेम इदा सॉल्व होएगा कि x - 2 एक बार ग्रेटर दैन 0 लवांगे, ग्रेटर दैन 0 तो की होना, इस साइन में एज इट इज रख के सॉल्व करके इंटरवल फाइंड आउट कर लेने। जो एक बार इन्हों लैस दैन लेना 0 नीचे वाली चीज़ में, तो फिर साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज कर देना। तुम देखो इस भी सॉल्व है साढ़े को ग्रेटर दैन 0 तो मैं साइन ऑफ इनक्वालिटी एज इट इज रख के इंटरवल फाइंड आउट कर ली। ठीक है, केस नंबर 2 च इनू लैस दैन जो रखे, साइन ऑफ इनक्वालिटी सेंटर वाला चेंज हो गया, ग्रेटर दैन द लैस दैन द ग्रेटर दैन। सो 2 इंटरवल अलग अलग आ गए, उन्होंने यूनियन पा के लिख दिता। मतलब कुछ औखा नहीं है, ताई मैं ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना मेरा यही मोटिव है कि तुहानूं क्लैरिटी हो जाए इन्हां दी। नेक्स्ट इज द 2 अपॉन x - 2 लेस दैन x + 2 अपॉन x - 2 लेस दैन 1। अगेन हम देखो नीचे x - 2 है, 2 केसिस होंगे कि x - 2 एक बारी का की होएगा ग्रेटर दैन 0, एक बारी होएगा लैस दैन 0। ग्रेटर दैन 2 तेनों एज इट इज साइन ऑफ इनक्वालिटी जोड़े दिते हुए उन्होंने इदा ही सॉल्व कर देना। सॉल्व करना तो तुहानूं आंदा ही है, तो तुहाडे कोल सोल्यूशन फाइंड आउट हो जाएंगे। जिद्दां इत्थे साडे कोल सोल्यूशन आया ही, ठीक है, इत्थे साडे कोल कोई सोल्यूशन नहीं आया, इहदे लई सोल्यूशन आ गया, जो सोल्यूशन आया लिख दो। हुण देखो ये तो वो सीगे सम, इत्थे तक तो वो सम सी जो नीचे वाली चीज़ सिर्फ इक्को टाइप के वेरीएबल सीगे, तो असीं उन्होंने या लैस दैन या ग्रेटर दैन लै लिया। हुण ये आ मेन थोड़े ये देखो कि 2 तरह के तुहानूं देगा, नीचे हुण x + 2 भी है, तो नीचे x - 1 भी है, 2 आ गए। हुण देखो डिनोमीनेटर 2 अलग अलग फैक्टर्स आ गए ने, x + 2 भी आ गया, x - 1 भी है। इस केस की करांगे, हुण दोनों तो 0 के बराबर नहीं हो सकते, आप पहले लवांगे कि x - 2 भी 0 के डिनोमीनेटर 0 के बराबर नहीं हो सकती ना, सो x - 2 भी 0 के बराबर नहीं होगा, x - 1 भी 0 के बराबर नहीं होगा, दैट मीनस x की वैल्यू भी कभी -2 नहीं होगी, तो x की वैल्यू 1 भी नहीं होगी। यानी 2 केस है, या तो दोनों ग्रेटर दैन 0 हो जाए, ठीक है, या फिर एक ग्रेटर दैन 0 हो जाए, एक लैस दैन 0 हो जाए, तो दोनों लैस दैन 0 हो जाए, इदा केसिस बननगे। सो ये देखो पहला केस की लिया उन्हें कि जो x + 2 हम लैस दैन 0 ले लिया, ठीक है, एंड जो x - 1 उन्होंने भी लैस दैन 0 ले लेने, दोनों ले ले, दो ही सी डिनोमीनेटर साढ़े को x + 2 तो x - 1 दोनों लैस दैन 0 ले लिया। लैस दैन 0 का मतलब तुम की समझते हो, वैल्यू नैगेटिव, तो नैगेटिव का प्रोडक्ट आपस की हो जाता ग्रेटर दैन 0, 2 वैल्यूज लेट से 2 वैल्यू नैगेटिव -2 -1 दोनों का प्रोडक्ट किया -2 × -1 2 हो गया ग्रेटर दैन 0।
सो यही है, इतने बहुत सारा कन्फ्यूजन होता बहुत सारे सानिया नूं कि हो की रहा थे x-2 लेस दैन 0 ले लिया, मैं x-1 भी लेस दैन 0 ले लिया, दैट मीनस दोनों का प्रोडक्ट क्या गया ग्रेटर दैन 0। बस हम ग्रेटर दैन 0 लिए सॉल्व कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनक्वालिटी तुहानूं पता जो भी दिता होया जो भी इस रकम का साइन ऑफ इनक्वालिटी दिता एज इट इज़ रख के इहनूं की करो सॉल्व कर दो। सॉल्व तो तुसीं कर लैंदे हो, इत्थे एलसीएम वगैरह लैके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपां x-1 फिर इत्थे तुसीं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, ठीक है, इनू पूरा एक्स स्केयर कैंसल हो गया। सो इनू आराम नाल सॉल्व कर सकते हो। साडे को आ गया एक्स ग्रेटर दैन 2, बट साडे को एक्स की सीगा लैस दैन -2 भी सी। देखो 0 तो कह रहा वड्डा, 0 तो वड्डा बट -2 तो छोटा, इदा तो कुछ हो सकता नहीं हो सकता। सो देयर इज़ नो सोल्यूशन, ये कोई इंटरवल कोई सोल्यूशन नहीं है। नैक्सट जिदा दूसरे केस की किया मैं, पहले केस की किया सी मेरे को डिनोमीनेटर दो चीज़ां सी ना, एक x+2 एक ही सी x-1, दो ही चीज़ां सी। एक पहले केस में दोनों की ले लिया लैस दैन 0। हुण मैं की करना आ, दोनों x+2 सॉरी एक नू ग्रेटर दैन 0 लेना, एक नू लैस दैन 0 ले लेना। तो x+2 ग्रेटर दैन 0 ले लिया, x-1 लैस दैन 0 ले लिया। हुण एक पॉजिटिव होवे एक नैगेटिव होवे, फिर दोनों का प्रोडक्ट की आंदा हमेशा लैस दैन 0। दैट मीनस कि हुण जो इन्होंने दोनों का प्रोडक्ट किते ना किते होगा लैस दैन 0 होएगा। क्लियर। हुण इहदे लई की करना, चेंज कर दिता, लैस दैन 0 हो गया, साइन ऑफ इनक्वालिटी कर दो, चेंज कर दो, जो तुसीं साइन ऑफ इनक्वालिटी ये लैके चल रहे थे उन्हें लैके सॉल्व कर दो, वो अकॉर्डिंग इंटरवल निकाल लो। ठीक है ना, इंटरवल वगैरह तुहानूं कढने हुण आंदे आ, सो उत्ते मैं ज़्यादा स्ट्रैस नहीं दे रही, मेन केसिस आ। पहला केस की लिया दोनों लैस दैन 0, फिर एक लैस दैन एक ग्रेटर दैन, जो मर्जी एक लैस दैन ले लेना एक ग्रेटर दैन। लास्ट केस की बचूगा दोनों ग्रेटर दैन 0, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव की मल्टीप्लाई आपस की होंगी पॉजिटिव ग्रेटर दैन 0 अगेन ग्रेटर दैन 0 तो साइन ऑफ इनक्वालिटी एज इट इज़ रख के तुसीं सॉल्व कर देना इहनूं। ठीक है, अगेन इंटरवल फाइंड आउट हो जाने, कोई शौका नहीं है क्वेश्चन ये सौखे आ कि इंटरवल ले जाओ तो वो अकॉर्डिंग जिदा हम तुहाडे कोल इत्थे आ गया एक्स की आ गया, इन्हें सॉल्व करके ग्रेटर दैन 0, एक्स बोल रहा 0 तो वड्डा, तो एक गल बोल रहा नाल कि एक्स की है साडे कोल ग्रेटर दैन 1 भी है। ठीक है, -2 भी है, ग्रेटर दैन 1 भी है, यानी इधर सारे जा रही है, सो 1 तो कितने तक चला जाएगा, इनफिनिटी तक। ठीक है, तुसीं ये ला लेना पॉजिटिव वाले से ना, ये ला लेना। सो 1 सोल्यूशन ऑफ ए अलग अलग तुहाडे को जो सोल्यूशन बने वो तुसीं लिख लेने। क्लीयर है जी, सौखा है, कुछ ज़्यादा औखा नहीं है, कॉमन शेड लिख लेनी है। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स विच सैटिस्फाई। हम देखो x+2 भी है 4x-1 भी है, दोनों x+2 भी है 4x-1 भी है, दो है ना, इन्हें पहले x की फॉर्म च भी तुसीं लिख सकते हो। ठीक है, जिदा ए है ना, इनू तुसीं इस फॉर्म च भी लिखते हो, जिदा आप 4 कॉमन कर लेने x-1/4। एक बार दोनों लैस दैन 0 ले लेने, दोनों लैस दैन 0 तो प्रोडक्ट की हो जाना ग्रेटर दैन 0, यानी साइन ऑफ इनक्वालिटी एज इट इज़ रखना। एक बार एक ग्रेटर दैन 0 एक लैस दैन 0, देख ही लो इतने पहला केस है दोनों लैस दैन 0 तो प्रोडक्ट ग्रेटर दैन 0, साइन ऑफ इनक्वालिटी एज इट रख के आप सॉल्व कर देना। एक केस एक ग्रेटर दैन 0 एक लैस दैन 0, सो इन्हों का प्रोडक्ट आपस की होएगा लैस दैन 0, तो साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज हो जाना। तीसरे केस दोनों ग्रेटर दैन 0, साइन ऑफ इनक्वालिटी फिर एज इट इज़ वो अकॉर्डिंग आ जाएंगे। सो साढ़े को 3 इंटरवल आ गए, तीनों यूनियन पा के आप लिख लेना। पेपर जिन्ना लेंथी सामने आना, बट आप करना है कि बाई चांस हो कोई बहुत ईजी रकम दे देंगे जिहदे बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला हो। ठीक है, सो नैक्सट इदा है अगेन नीचे दो वाली चीज़ा है, दोनों असी तीनों ही केस बन गए। आई होप तो समझ आ गया वा, हम खुद देख लेना तुसीं, ये ज़्यादा औखे नहीं है, लेंथी बहुत सामने है, बस एक बारी तुहाडी प्रैक्टिस लिए कि देखने हो तुसीं देख लियो। अगेन है 1/x² -2x+1, सो ये फैक्टर बना लो। पहला तो इन्हें सॉल्व किया x-1 का होल स्केयर एंड +1 ग्रेटर दैन 0। ओके, उन्हें इस चीज़ को पहले सॉल्व कर लिया ना, +1 -1 जो आप करते होंगे, सो इन्हें करके एक फैक्टर्स बना लिए। हुण आ वाली चीज़ सानू की दी हुई है 1/x² -2x+2 ग्रेटर दैन 4, सो इधर चल जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 देना। ठीक है, ये देखो, सो 1/4 ही साढ़े को बन जाएंगे। हुण उस तो बाद हैगा +1 लैस दैन 1/3 होगा, यानी x-1 का होल स्केयर लैस दैन -3/4। तुसीं आप दसो किसी भी चीज़ का स्केयर कि किसी चीज़ का स्केयर किसी माइनस वाली रकम तो छोटा हो सकता नहीं, क्योंकि स्केयर करके तो आंदा ही पॉजिटिव आ। सो ये तो कोई गल बनती नहीं, सो इसका सोल्यूशन की बन गया 5। सो इदा भी तुहानूं ध्यान रखना पैना। क्लियर, उन्हें बोले x-1 का होल स्केयर, ये सॉल्व करके स्केयर करके कुछ ना कुछ आंसर आएगा, बट वो कभी भी किसी माइनस वाली रकम तो छोटा नहीं हो सकता, बिकॉज स्केयर करके तो आंसर ही पॉजिटिव आता, तो पॉजिटिव वाली माइनस तो की होंदियां वड्डियां होंदियां। नैक्सट ये है √x+1 = x। सिंपल है सम, कुछ नहीं औखा, तुसीं दोनों साइड स्केयरिंग कर दो। जो मैं दोनों साइड स्केयरिंग करांगी, ये देखो ये बन गया मेरे को x³ + 1, नहीं सॉरी इधर सोल्यूशन है ये वाला,
ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਮੰਗੇ एक्स स्केयर प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्केयर कैंसल 1 इक्वल टू 0 इदा हो सकता 1 इज इक्वल टू 0 नो। सो इस करके सोल्यूशन की आ गया पाई। सेम तुम सैकेंड वाला सम करोगे, ठीक है। इदा के कई बार सिंपल सम बिल्कुल आ जाते हो। फॉर द वट वैल्यू ऑफ द एक्स क्यूब प्लस 1 ग्रेटर दैन एक्स स्केयर प्लस एक्स। सो इन्हों भी तुम अगेन उदा सॉल्व करोगे। पहला क्वाड्रेटिक बन गई, इतने इक्वेशन एक साइड लै गए ग्रेटर दैन 0, दो फैक्टर्स क्रिएट हो गए। सो फैक्टर्स बना लो एक्स माइनस 1 का होल स्केयर ग्रेटर दैन 1, तो एक्स प्लस 1 आ गया ग्रेटर दैन 0। असं ले लिया तो एक्स प्लस 1 की आ गया ग्रेटर दैन 0, ठीक है। कि एक्स प्लस 1 जो आप लिया ग्रेटर दैन 0, तो एक्स माइनस 1 द स्केयर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 फॉर एवरी, क्योंकि तो हमेशा ही 0 के ग्रेटर दैन नहीं रहना, सानू पता है। क्यों पता है? क्योंकि किसी भी का स्केयर कर दियो हमेशा 0 तो वड्डा ही होंदा, ठीक है। देयरफॉर इत्थों आ गया साडे कोल एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, बट एक्स नॉट इक्वल टू 1। एस एक्स इक्वल टू 1 की कहेगा जो मैं एक्स इक्वल टू 1, तुम आप सोचो जे मैं एक्स इक्वल टू 1 पुट कर दिता इस इक्वेशन के 1, इतने 1 स्केयर 1 प्लस 1, इतने आएगा 1 स्केयर 1 प्लस 1, सो 1 प्लस 1 2 2, इधर भी 2 आ गया। इज दिस पॉसिबल कि 2 इज ग्रेटर दैन 2? 2 तो इक्वल टू 2 होंगे ना, 2 ग्रेटर दैन 2 तो ना आएगा। सो इस करके मैं इनू छड्ड के इतने लिया एक्स प्लस 1 ग्रेटर दैन 0, सो तो एक्स आ गया ग्रेटर दैन 1। सो एक्स ग्रेटर दैन 1 बट एक्स नॉट इक्वल टू 1, मतलब एक्स ग्रेटर दैन में, बट सानू पता है एक्स नॉट इक्वल टू 1। सो माइनस 1 तो मैं कितने तक जाना, मेरे को माइनस 1 ना, वो तो ग्रेटर दैन कितने तक जावांगे इनफिनिटी तक। एक सेंटर पॉइंट 1 ले लिया आप, माइनस 1 तो पहले 1 जावांगे फिर 1 तो इनफिनिटी। सो ਇਹਦਾ ਇਹ सोल्यूशन हो जाएगा, क्लियर। नैक्सट द एब्सोल्यूट वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द मॉडुलस और रियल नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरैक्ट ही कई बार मॉड एक्स, जब एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 उन्हें एक्स होकर खुलना, जो एक्स लैस दैन 0 फिर उन्होंने माइनस मॉड एक्स जो उन्हें बाहर आना माइनस एक्स आना। सिंपल आ कि जे तो वो एक्स जो है ग्रेटर दैन 0 अप्रोच हो रहा, फिर तो मॉड एक्स में जो ओपन करेंगे वो एक्स आ जाएगा। जो लैस दैन है फिर असी उन्होंने एज अ माइनस एक्स लिखांगे, क्लियर। जो मॉड एक्स इक्वल टू 3 माइनस मॉड इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 3 मॉड 0 0 होंगे। मॉड एक्स में मैक्सीमम ऑफ एक्स कॉमा माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। मॉड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस मॉड ऑफ एक्स की सिमैट्रिकल ये पॉइंट दसे हुए मेन है तुहाडे कोल फॉर्मूले जो तुहानूं डायरैक्ट पूछे जा सकते हैं। देखो पहली गल, मॉड ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, हर रियल नंबर लिए। मॉड एक्स इक्वल टू 0 कदों हो सकता? सिर्फ उदों जो एक्स की है 0। मॉड एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स भी होंदा, ठीक है। एक्स माइनस एक्स का मॉड सॉरी, मॉड एक्स इक्वल टू मैक्सीमम ऑफ एक्स कमा माइनस एक्स लिख दे, या फिर जो माइनस मोरे लग गया फिर मिनिमम ऑफ एक्स कमा माइनस एक्स। ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एदी का रिप्रेजेंटेशन है कि माइनस ऑफ मॉड एक्स लैस दैन इक्वल टू एक्स लैस दैन इक्वल टू एक्स। तो मॉड एक्स इक्वल टू एक्स कदों होएगा जो एक्स की होएगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है जी। एदी मॉड एक्स साडे कोल इतना है ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। मॉड एक्स ग्रेटर दैन एक्स इफ एक्स लैस दैन 0, ठीक है। सो इधर तुहानूं अलग अलग उन्हें पॉइंट्स दिते हुए हैं कि कदों ग्रेटर दैन 0 है कदों लैस दैन। मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स लैस दैन 0, मॉड एक्स का स्केयर इक्वल टू एक्स स्केयर, मॉड एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्केयर भी लिखा जा सकता। हुण जिन्ने भी प्रूव है ये तुसीं डायरैक्ट याद करने हैं। जिवें मॉड ऑफ ए ते बी का मॉड उन्होंने मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी भी लिख सकते हैं। ये प्रूव नहीं करने, तुसीं याद करने। मॉड ऑफ ए बी डिवाइड च कल्ले कल्ले का मॉड पा सकते हो, ठीक है। ए प्लस बी आ उहदा मॉड ऑलवेज लैस दैन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। ये तुसीं डायरैक्ट रिजल्ट याद करने हैं, ठीक है। ये सारे प्रूफ किए हुए हैं कि किद्दां आए हुए हैं। एक ये मॉड एक्स इक्वल टू एल है तो एक्स की होएगा प्लस माइनस एल। बाकी ये भी याद करने जे ए स्केयर लैस दैन इक्वल टू बी स्केयर है कदों होएगा जे मॉड ऑफ ए लैस दैन इक्वल टू की होएगा मॉड ऑफ बी। ये वाला देखो ए स्केयर लैस दैन है, जे लैस दैन इक्वल टू जे कल्ला लैस दैन ग्रेटर दैन इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू कल्ला ग्रेटर दैन ते कल्ला ग्रेटर दैन, ठीक है। ये सारे उन्होंने प्रूव किया हुआ उन्होंने। बहुत ईजी है, बहुत ईजी, सिर्फ प्रैक्टिस की लोड़ आ, ठीक है। उस तो बाद आप मास्टर किट जिन्ने क्वेश्चन आए वो भी सॉल्व कर लेने, बट फिलहाल ही तुहानूं आ चीज़ां बिल्कुल क्लीयर होनी चाहिए। इन्हों प्रैक्टिस जरूर कर लियो। सारी क्वेश्चन मैं मोस्टली करवा दी है जिन्ने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो तुसीं प्लेलिस्ट भी चैक कर लेना जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी। जो वीडियो पसंद है मैंने लाइक एंड कमेंट करके जरूर दस्सिओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।